Okay, so what we are going to learn today is loops. What is a loop? You can say repetitive repetitive statements, right, can be put into a loop, right? It's something like let's say you have a music player, and in that music player if you have a playlist, right, and if you want to run that playlist again and again, means पहला सॉन्ग हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, एंड देन उसके बाद वापस पहले सॉन्ग पे आना चाहिए. सो दैट इज व्हाट इज a loop, right? So it keeps on running in a loop, right? That is what a loop is, right? So generally तीन टाइप के loop होते हैं. One is a while loop, a for loop, and a do while loop, right? JavaScript also gives you another loop which is for each loop, right? So these are generally the types of loops which you have, right? So we'll understand them one by one. एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, right? But prior to that, let us understand the scenario where loop would be required. Let us say that I have a task. Task is print numbers from 1 to 5 on console, right? So how will we print it? We'll simply say console.log 1. Then I'll copy this 5 times. ये 2, 3, 4, 5. So I would say 2, 3, 4, 5. Right, that is how I would be printing it. Right, and if I run this, so I'll get, or I should get 1, 2, 3, 4, 5. Right, it is fairly simple. Now what if I say print 1 to 5,000 or 50,000? Right, so probably you would leave the class कि ये 50,000 बार statement कौन लिखेगा, right? Because this statement will have to be copied 5,000 times or 50,000 times if we have to print 50,000 numbers, right? So अब इसमें क्या है कि यही स्टेटमेंट आप कंटिन्यूसली रन कर रहे हो, राइट? व्हाट इज रिपीटिंग इज दिस console.log is getting repeated. What is the difference is this particular वैल्यू, दैट इज जो 1, 2, 3, 4, 5 आप भेज रहे हो वो चेंज हो रही है, राइट? सो टू एंश्योर दिस दैट मिनिमलिस्टिक वे में ये चीज़ें चले, राइट, वी नीड टू फाइंड सम मैकेनिज्म. Right, now let us see what that mechanism is. That mechanism can be achieved using a loop. Right, so let us say we have to print numbers from 1 to 100. Right, so for that, what I would first use is a while loop. Right, so I would say while, then inside while, right, while के बाद में we give brackets, and inside while what we do is we give some condition. So we should have some condition here. Right, I'll come to the condition later, but prior to that what I would do is I'll declare some variable. I will say let I, and I would assign it a value 1. Why 1? Because मुझे 1 से लेके 100 तक प्रिंट करने हैं, तो पहला जो भी वैल्यू है वो मैं इसमें डाल देता हूँ, right? Then what I would do is inside this I would say while में I'll put in a condition. So what will my condition be? Condition would be while I less than equals to 100, right? And inside this I would simply say console.log I. So what is this going to do? First my I equals to 1, then I'll check if 1 is less than equals to 100, absolutely true, then it would print I, value of I, which is 1. Next time again it will come, it will check again if 1 is less than equals to 100, again it is true, again it will print 1. So the glitch here is that it will keep on printing 1 infinite times. Why? Because this condition is it's still getting satisfied. So what I would do is after this, after I print my number, I would simply say I equals to I plus 1. Right, this is similar or analogous to saying I plus plus.
सो व्हाट इज आई इक्वल्स टू आई प्लस वन? आई इक्वल्स टू आई प्लस वन का मतलब ये है कि आई की वैल्यू पहली बार 1 थी, वो हो जाएगी 2 एंड दिस 2 वुड बी असाइन टू आई. सो नेक्स्ट टाइम द कंडीशन विच वुड बी चेक्ड वुड बी 2 less than equals to 100. Then 2 will be printed here, and what we would get here is I equals to 2 plus 1, that is 3. So this way it would go on till I becomes 100. Right, एक बार I 100 हुआ, यहाँ 100 प्रिंट होगा. 100 एक बार प्रिंट हो गया कि this would become I equals to I plus 1, 100 plus 1, which is 101. 101 less than equals to 100, it would become false and it will come out of that loop. Right, so what you need to focus on is, or what you need to keep in mind is कि a loop, it is composed of say 3 to 4 important things. First thing is initialization. Initialization मतलब क्या कि ये लूप में ये i जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उस i को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं कोई तो एक बेसिक वैल्यू से. राइट, इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज 1. क्यों? बिकॉज आर रिक्वायरमेंट इज कि हमें 1 to 100 प्रिंट करना है, इसलिए हमने उसको 1 से इनिशियलाइज किया. उसके बाद व्हाट आई एम डूइंग हियर इज इनसाइड व्हाइल आई एम गिविंग अ कंडीशन. सो व्हाट वी आल्सो नीड इज अ कंडीशन. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग कंडीशन. ब्रेकिंग कंडीशन मतलब कि वो लूप आपका कब ब्रेक होगा. कई बार आपने देखा होगा कि आपके म्यूजिक प्लेयर में ऐसी कंडीशन होती है कि एक होता है रिपीट और एक कंडीशन होती है कि रिपीट 3 times या रिपीट 4 times. तो आपकी प्लेलिस्ट जो है वो 4 ही बार रन होगी. राइट, सो दैट इज व्हाट इज लूपिंग, और दैट इज व्हाट इज द कंडीशन फॉर लूपिंग कि कितनी बार वो लूप होना चाहिए. सो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस वुड लूप 100 times. राइट, एंड थर्ड थिंग इज this I plus plus, it is increment और डिक्रीमेंट और चेंज. राइट, आपकी कंडीशन जो है वो ब्रेक करने के लिए सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी तो इट विल कीप ऑन रनिंग फॉर एवर. जब तक आपका मेमोरी ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो चलेगा. उसके बाद वो एक कुछ तो फॉल्ट दे देगा और फिर आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा. एप्लीकेशन क्रैश होगा, उससे मशीन को कुछ नहीं होता. कभी कभी हैंग हो जाती है क्योंकि सारे रिसोर्सेस वो यूज़ करता है, बट अदरवाइज व्हाट दैट केस इज कॉल्ड एज, दैट केस इज कॉल्ड एज एन इनफाइनाइट लूप. इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या है कि लूप विच कीप्स ऑन रनिंग फॉर एवर. दैट इज व्हाट इज एन इनफाइनाइट लूप. नाउ लेट अस रन दिस थिंग, दिस प्रोग्राम, एंड चेक इफ इट प्रिंट्स 1 to 100. राइट, सो आई से नोड index.js. राइट, तो अगर आपने देखा कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and it is incrementing till it reaches 100. Right, so this is what is a loop. Right, यही चीज़ आपको इंडिविजुअली करनी होती थी तो आपको 100 console.log स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते थे अगर लूप नहीं होता था तो. राइट, सो दिस लूप प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. राइट, तो प्रोग्रामिंग सीखनी है तो लूप्स. हाँ बोलो सर. जैसे वो 1 to 100 एक के नीचे एक आया. हाँ, तो सर अपन सी में तो वो प्रिंट एलएन लिखते तो वो एक के नीचे एक आता. सर इसमें तो अपन ने कुछ वैसा लिखे नहीं, तो सर वो एक के बाजू में एक आना चाहिए ना. नहीं तो उसमें कैसा है कि ये जो तुम्हारा console.log है ना, console.log हमेशा एक न्यू लाइन कैरेक्टर डाल देता है. अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है ना. सो अगर मैं यहाँ पर हाँ जैसे बोलता हूँ console.log hello, right, and if I say console.log world, तो क्या होगा? this particular statement it will print hello and a new line character. Right, this particular statement would print world and a new line character. So if we run this, ये देखो hello and world न्यू लाइन पे आया, तो वो console.log की वजह से. ठीक है. और सर ये व्हाइल लूप में सर इंक्रीमेंट देना जरूरी है क्या? अपन रिटर्न i plus 1 भी तो कर सकते थे. नहीं, रिटर्न हमेशा फंक्शन से होता है. अच्छा, yes, है ना, रिटर्न हमेशा फंक्शन से होता है, यहाँ से रिटर्न नहीं हो रहा है कुछ. राइट, तो लूप कैसा है? लूप इज रनिंग, यू कैन एट मोस्ट ब्रेक अ लूप. राइट, विल कम टू दैट. रिटर्न का मतलब क्या
देखो कैसे रहता है कि हम लोग लेट्स से ये एक पाथ है, ये पाथ पे चल रहे हैं, राइट, एंड वी हैव सम फंक्शन हियर। तो तुमने ये देखा होगा कि हमने जब भी कोई फंक्शन वंक्शन लिखे तो वो फंक्शन हम लोग उसका ये कैसे रहेगा कि लेट्स से आई राइट लेट फन इक्वल्स टू फंक्शन, राइट, एंड here we write console.log in fun, ठीक है। और if I write console.log say hi, right, then I write console.log hello, right, then I call this function, I say fun, and I say console.log say world। तो यहाँ फ्लो कैसा हो रहा है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा तो हाई प्रिंट होगा, उसके बाद ये फंक्शन बना, लेकिन यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला। क्यों? बिकॉज ये फंक्शन इज यूजलेस अनलेस इट इज कॉल्ड। उसके बाद क्या होगा, आपका हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद आप फन को कॉल कर रहे हो, तो आपका जो फ्लो है सीधा चलने वाला फ्लो, दैट फ्लो इज ब्रेकिंग। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, द कंट्रोल विल ट्रांसफर टू दिस प्लेस और यहाँ से एग्जीक्यूशन चालू होगा, ये खत्म होगा, वापस कंट्रोल इधर आएगा और फिर आप इसको प्रिंट कराओगे। तो आपका फ्लो जो है वो लाइन बाय लाइन से थोड़ा सा ब्रेक होके इधर पे चले गया। अंडरस्टूड? तो इसीलिए हम लोग फंक्शन में से अगर कुछ रिटर्न करवाना है तो रिटर्न करा सकते हो, वो उसको आप यहाँ पर कहीं पे तो वैल्यू लोगे उसकी, एंड देन यू कैन यूज दैट वैल्यू। सर इसमें रिटर्न बताओ, रिटर्न कैसे करेंगे? आई विल से रिटर्न से 10। तो फिर पहले ये फन वाला फंक्शन प्रिंट करेगा क्या? नहीं नहीं, रिटर्न जो है, रिटर्न क्या रहता है, वो फंक्शन का आउटपुट है जो वो फंक्शन वापस भेज रहा है। तो होता कैसे है कि ये आपका हाई प्रिंट हो गया, राइट, उसके बाद ये फंक्शन जो है ये डिक्लेयर हो गया या डिफाइन हो गया इधर, लेकिन वो यूज़ नहीं किया। फंक्शन को जब तक यूज़ नहीं करोगे कोई काम का नहीं है। उसके बाद हमने ये console.log लिखा, फिर ये फन में आएगा। अब ये फन में होने क्या वाला है कि ये console.log ये पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर ये रिटर्न 10 एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो 10 वैल्यू है, ये 10 वैल्यू आप किसी वेरिएबल में ले सकते हो। यू कैन सेलेक्ट b इक्वल्स टू फन। तो यहाँ क्या होने वाला है, ये b जो है इसके अंदर वो 10 हो जाएगा। हमने जैसा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फंक्शन लिखा, राइट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम लोग लेंथ एंड ब्रेड्थ भेजते हैं एंड लेंथ इनटू ब्रेड्थ वापस रिटर्न करवाते हैं। तो उस लेंथ इनटू ब्रेड्थ की जो भी वैल्यू है उसको आप किसी वेरिएबल में ले सकते हो और देन यू कैन यूज दैट वेरिएबल जैसे चाहिए वैसे। अंडरस्टूड? एंड अगर लेट से आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल 100 टाइम्स निकालना है, तो वो 100 टाइम्स अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, उसी फंक्शन को 100 बार कॉल करोगे। फिर वो आप 100 टाइम्स फन ऐसे लिखो कॉल करने के लिए, या तो फिर आप एक लूप लगाओ 100 बार जो चलेगा, राइट, और उस फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, इस पे आते हैं, यानी जैसे जैसे हम लोग ये लूप्स आगे बढ़ेंगे ना, बहुत फंक्शंस लिखोगे तुम तो तुम्हें समझ में आएगा वो। ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूँ और लूप के ऊपर आते हैं। ओके, सो ये वाइल का मतलब फंक्शन नहीं है। डिफरेंस क्या है, लूप में सिर्फ वो लूप हो रहा है, यानी यही चीज़ें 50 बार चल रही है या 100 बार चल रही है, मल्टीपल टाइम्स रन होगी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। फंक्शन में कैसा है कि फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है हर बार, राइट। तो आपका इनिशियलाइजेशन जो है वो 1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, एक ही बार होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक बार होने वाली है, राइट। कंडीशन को अगर हम लोग, कंडीशन हमेशा चेक होगी, हमेशा इन द सेंस कि ये लूप के अंदर जाने के पहले ये कंडीशन में जाएगा। अगर ये कंडीशन आपकी, लेट से मैं यहाँ पर देता हूँ कि i लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या है, i लेस देन 0 अगर मैं बोलता हूँ तो 1 लेस देन 0 इज फॉल्स। अगर वैसा है तो दिस वुड नेवर बी एग्जीक्यूटेड, राइट। ये अगर मैं रन करता हूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? बिकॉज ये कंडीशन जो है ये एग्जीक्यूट ही नहीं, ये
फॉल्स आई, कंडीशन फॉल्स का मतलब आप ये लूप के अंदर नहीं जा रहे हो. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, great. Right, so I'll again give I less than equals to 100. Right, and यहाँ पर I equals to I plus 1. ठीक है. Now लेट से इफ आई, अब ये 100 को मैं 5 कर देता हूँ, नहीं तो अपना ये पूरा भर जाएगा स्क्रीन. राइट, तो दिस शुड प्रिंट यू 1 to 5. राइट, नाउ लेट अस से इफ आई हैव टू प्रिंट all the even numbers between 1 to 100. Let us say I have to print all the even numbers between 1 to 100. राइट, तो मतलब क्या प्रिंट होना चाहिए? 2, 4, 6, 8 लाइकवाइज अप टिल 100 ये प्रिंट होना चाहिए. तो ये आप कैसे करोगे? यू विल से वाइल आई, अच्छा पहले i इक्वल्स टू 1 अगर वापस बोल देते हैं हम लोग. ये i मैंने अभी लेट नहीं लिया बिकॉज i हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी उसको डिक्लेयर कर चुके हैं. तो आई विल से वाइल i लेस देन इक्वल्स टू 100. ठीक है, एंड इन दिस व्हाट आई वुड से कि इफ i mod 2 इक्वल्स टू 0, मतलब क्या कि i जो है उसकी वैल्यू इवन है. आई वुड सिंपली से कंसोल डॉट लॉग I, right, and after this I would give I plus plus. तो अब क्या होगा कि I आपका अगर इवन है तो ही वो प्रिंट होगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा. आई विल कमेंट दिस थिंग, ये नहीं होगा. राइट, सो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? while I is less than equals to 100, then I am saying if I mod 2 equals to 0, I am saying console dot log I. मतलब अगर i मेरा इवन है तो ही वो प्रिंट होगा. लेट अस रन दिस एंड चेक. 100 बहुत बड़ा है, 10 कर देता हूँ, यानी सिंपल है. तो 2, 4, 6, 8 एंड 10 इतना ही प्रिंट होगा. तो 2, 4, 6, 8 एंड 10 प्रिंट हुआ. अगर मैं लेस देन इक्वल टू के बदले सिर्फ लेस देन 10 करता हूँ तो लेट्स सी क्या होगा. 2, 4, 6, 8 प्रिंट हुआ. 10 के लिए दिस कंडीशन बिकेम फॉल्स एंड इट केम आउट ऑफ देयर. Understood? Yes, sir. Okay, great. Right, now let us say that I have a function. I say let fun equals to function, and in this function, right, I simply print hello. In this function I simply print hello. Right, अब मुझे ये hello को 10 बार प्रिंट करवाना है. मैं इसे भी कमेंट कर रहा हूं. इस फंक्शन को मुझे ये हेलो को मुझे 10 बार प्रिंट कराना है. तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आई विल से वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू 10. आई विल ऑल्सो से i इक्वल्स टू 1, शायद वो ना हो. ठीक है, तो आई विल से वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, आई विल कॉल दैट फंक्शन in this loop and I would say I plus plus. ठीक है, तो क्या हुआ कि अब ये क्या हो रहा है? ये I ये फंक्शन में कहीं यूज नहीं हो रहा, लेकिन I किस लिए यूज हो रहा है कि ये लूप आपको कितनी बार रन करना है. राइट, तो ये लूप कितनी बार रन होगा? 10 टाइम्स रन होगा. फर्स्ट टाइम 1, तो I की वैल्यू जब 1 होगी हेलो विल बी प्रिंटेड, I विल बिकम 2. राइट, फिर I की वैल्यू 2 होगी, अगेन हेलो विल बी प्रिंटेड, I विल बिकम 3. राइट, लाइकवाइज कब तक होगा? जब ये 10 हो जाएगा तब भी ये प्रिंट हो जाएगा. 11 होगा जब आए, राइट, तब दिस कंडीशन वुड बिकम फॉल्स एंड इट विल कम आउट ऑफ दैट लूप. राइट, सो व्हाट इज दिस फंक्शन डूइंग? दिस फंक्शन इज प्रिंटिंग दिस हेलो 10 टाइम्स. लेट्स चेक. तो 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10. राइट, इट प्रिंटेड 10 टाइम्स. राइट, सो inside your while you can again call the function as many times as you want. Is it clear? Yes, sir. Okay, great. सर ये फंक्शन को कर्ली ब्रेसेस क्लोज होने के बाद लिखे तो होगा क्या?
यानी यहाँ पे बोल रहे हो ये हो तो जाएगा, लेकिन ये व्हाइल का पार्ट नहीं होगा। यानी अगर तुमने यहाँ से कमेंट कर दिया और यहाँ लिखा, तो ये क्या होने वाला है, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, सिर्फ एक बार हेलो प्रिंट होगा। एक ही बार प्रिंट होगा। यस, क्यों? बिकॉज वो व्हाइल का पार्ट नहीं है, 10 बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है वो। 10 बार क्या होने वाला है, जो भी ये पर्टिकुलर दोनों ब्रेसेस के अंदर में है उतनी ही चीजें 10 बार प्रिंट होगी या 10 बार एग्जीक्यूट होगी। अंडरस्टूड? ओके, ग्रेट। राइट, अब जैसा एक वाइल लूप होता है वैसा एक फॉर लूप भी होता है। राइट, सेम चीज, एवरीथिंग विच यू कैन डू विद अ वाइल यू कैन डू विद अ फॉर। उसमें कैसा है, आई विल से फॉर, राइट, लेट, या आई अपना ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो आई विल से आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, सेमिकोलन आई प्लस प्लस। राइट, इन दिस आई वुड कॉल फन। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ वापस। तो इसमें क्या हो रहा है, दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, राइट, दिस विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, then your condition will be checked. If the condition is true, right, this thing would be executed, right? So this is, मैं कैसे करता हूँ, this is condition number, this is let's say step number 1, right? This thing condition is step number 2 and this thing is step number 4, and whereas this entire block it is step number 3, right? So flow कैसा होगा, सबसे पहले स्टेप 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, स्टेप 1 विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, राइट, देन स्टेप 2 विच इज द कंडीशन, नाउ इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ ट्रू, राइट, देन स्टेप 3 वुड बी एग्जीक्यूटेड, विच इज ये ब्लॉक के अंदर जो भी होगा वो सारी चीजें एग्जीक्यूट होगी। देन स्टेप 4 विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट, स्टेप 4 मतलब आई प्लस प्लस होगा, राइट, एंड आफ्टर दैट रिपीट या गो टू स्टेप 2। तो क्या होने वाला है, सबसे पहले i इक्वल्स टू 1, राइट, स्टेप 1 विल बी executed only once, right, then step 2 would be executed, which is the condition, and if this condition is true it will come out, right? यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि if false, right, go to next statement after the loop। मतलब क्या होगा कि वो यहाँ पर आ जाएगा 52, इफ आई राइट console.log हेलो, तो वो इधर आ जाएगा। मतलब क्या होने वाला है यहाँ कि आपकी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो वो डायरेक्टली इधर आ जाएगा, राइट, दैट इज हाउ अ लूप रन्स। सो लेट अस से, राइट, लेट्स टेक एक फॉर का एग्जांपल, इफ वी हैव टू print all odd numbers between 1 and 10, right, let's see how it would work. I would say for let b equals to 1, b less than equals to 10, b plus plus, and I would say if b mod 2 not equals to 0, मतलब क्या, इट इज ऑड नंबर, आई वुड से console.log b। अब मुझे अंदर आई प्लस या बी प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं, ये बी मेरा इधर आ जाएगा, यानी बी प्लस प्लस यहाँ से हो जाएगा। दिस इज स्टेप नंबर 4 विच वुड बी एग्जीक्यूटेड, राइट, लेट्स सी, लेट्स रन दिस। तो ये देखिए, ये हेलो तो ये पुराने वाले इसके होंगे, यहाँ से हेलो प्रिंट हुए 10 बार, राइट, 11 बार क्योंकि ये 52 पे भी आया, and then only the odd numbers between 1 to 10 they are printed. Is it clear?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. What we should do is